Good morning. I am going to teach you a poem of class 10th, and the name of the poem is The Fountain. I am going to write this poem. You will see it, and after it I shall explain it into Hindi and English. The name of the poem is The Fountain. The Fountain means झरना या फव्वारा. झरना या फव्वारा. जेम्स रसेल लावेल. जेम्स रसेल लावेल. Into the sunshine. Into the sunshine. Into the sunshine, full of the light. Full of the light. Leaping and flashing. Leaping and flashing. Leaping and flashing from morn till night. From morn till night. Into the moonlight. Into the moonlight. Into the moonlight, whiter than snow. Whiter than snow. Waving so flower-like. Waving so flower-like. When the winds blow. When the winds blow. You will care more and more that the name of the poem is The Fountain. In Hindi, झरना या फव्वारा. And this beautiful and inspiring poem has been composed by James Russell Lowell, who has been a famous and great poet of English literature. The name of the poem is The Fountain, in Hindi फव्वारा या झरना, and the name of the poet is James Russell Lowell. You should know that in this beautiful poem, in this inspiring poem, the poet James Russell Lowell has described the different activities of a fountain. The different activities of a fountain have been told by the help of this beautiful poem. And what is the condition of a fountain in the time of day, and what is the condition of a fountain in the time of night, and what is the condition of the fountain in the time of starlight. These things have been explained by the poet in the best way. Into the sunshine, full of the light.
leaping and flashing from morn till night. Into the sunshine, into means में, sunshine means होता है the light of the sun, माने सूर्य की रोशनी. And when does the sunshine come? In the time of day. Into the sunshine का मतलब सूर्य की रोशनी में. सूर्य की रोशनी का मतलब दिन के समय में, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त के बीच का जो समय होता है, इट इज द टाइम ऑफ डे, माने सूरज की रोशनी में. इनटू द सनशाइन, सूर्य की रोशनी में कहने का मतलब दिन के वक्त में, दिन के समय में. इन द टाइम ऑफ द डे. फुल ऑफ द लाइट, फुल मीन्स होता है पूर्ण या परिपूर्ण. ऑफ द लाइट, लाइट मीन्स होता प्रकाश. दोनों लाइन का अर्थ हो गया सूर्य की रोशनी में प्रकाश से युक्त होता है. माने क्या जो है सूर्य की रोशनी में प्रकाश से परिपूर्ण होता है? फव्वारे का जल, झरने का जल. द पोएट टेल्स अस दैट द वाटर ऑफ ए फाउंटेन इज फुल ऑफ लाइट इन द टाइम ऑफ डे. It flashes, it shines in the time of the day, because the day gives us sunshine, and in the time of the day all things shine by the light of the sun. माने सूर्य की रोशनी में फव्वारे का जल प्रकाश से परिपूर्ण होता है. लीपिंग एंड फ्लैशिंग, लीप मीन्स होता है उछलना, जंपिंग कंटिन्यूसली. फ्लैशिंग मीन्स होता है वो चमकना. तो सूर्य की रोशनी में फव्वारे का जल प्रकाश से परिपूर्ण होता है, उछलता कूदता रहता है और चमकता रहता है. इन द टाइम ऑफ द डे, व्हेन द सन इज शाइनिंग इन द स्काई, द वाटर ऑफ द फाउंटेन इज shining, is full of light, and it jumps continuously, and it shines continuously from morn till night. From means से मॉर्न जो है मॉर्निंग का शॉर्ट फॉर्म है. मॉर्न इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द मॉर्निंग. मॉर्निंग मीन्स होता सुबह. मॉर्न को जब जो है विस्तार से लिखेंगे हो जाएगा मॉर्निंग. और टिल मीन्स होता तक. फ्रॉम माने से, मार माने मॉर्निंग, टिल माने तक, नाइट माने रात. माने सुबह से लेकर के रात तक जो है वो क्या होता है? सुबह से लेकर के रात तक, या सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक दिन की रोशनी में फव्वारे का जल प्रकाश से परिपूर्ण होता है. ये उछलता कूदता रहता है और ये चमकता रहता है. When it is the time of the day, or when the sunrise starts, from the time of sun shining, sun rising, till the time of the sun setting. In the time of the day, the water of the fountain is full of light. It jumps and it shines or flashes. This is the explanation of the first stanza. Means when it is the time of day, or between the time of sunrise and sunset, the water of the fountain is full of light. It jumps continuously. It shines continuously in the time of the day. Into the moonlight, whiter than snow, waving so flower-like, when the winds blow. And what time comes after the day? It comes the time of night. When the sun sets, the night comes. Into the moonlight, चंद्रमा की रोशनी में. इंटू माने में, मून माने चंद्रमा, लाइट माने रोशनी. चंद्रमा की रोशनी के का मतलब रात के समय में जब चंद्रमा आकाश में होता है और चंद्रमा चमकता रहता है चंद्रमा की रोशनी में. व्हाइटर देन स्नो,
तो व्हाइट जो है, व्हाइट इज एन एडजेक्टिव एंड इट्स डिग्रीज आर व्हाइट, व्हाइटर, व्हाइटेस्ट। व्हाइट मीन्स सफेद, व्हाइटर मीन्स और सफेद, व्हाइटेस्ट मीन्स सबसे सफेद। व्हाइट माने सफेद, व्हाइटर मीन्स और सफेद, ज्यादा सफेद। दैन माने तुलना में, स्नो माने बर्फ। माने चंद्रमा की रोशनी में फव्वारे का जल बर्फ से ज्यादा सफेद होता है। चंद्रमा की रोशनी में कहने का मतलब जब जो है रात्रि हो जाती है और चंद्रमा आकाश में चमकता रहता है, तो चंद्रमा की रोशनी में या चांद की रोशनी में फव्वारे का जल कैसा होता है? वो बर्फ से ज्यादा धवल या सफेद हो जाता है। वेविंग, वेविंग मीन्स लहराता रहता है, लहराता रहता है, हवा के साथ चलता रहता है, लहराता रहता है। वेविंग, लहराता रहता है। सो माने ऐसा, यहाँ जो है वो सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। सो, लाइक या एज, तीनों शब्दों में से अगर कोई सो या लाइक या एज जिस कविता की पंक्ति में आता है तो वहाँ जो है वो सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होती है। वेविंग सो, और इसके समान लहराता है। किसके समान लहराता है? फ्लावर लाइक। लाइक भी जो है वो शो कर रहा है कि यहाँ जो है सिमिली है, और सो भी जो है से क्लियर कर रहा है कि यहाँ सिमिली है। फ्लावर मीन्स फूल। और क्या करता है? व्हेन द विंड्स ब्लो, व्हेन माने जब, विंड, विंड मीन्स हवा होता है, विंड्स मीन्स हवाएं, और ब्लो हवा के बहने को ब्लो कहते हैं, और पानी के बहने को फ्लो कहते हैं। पानी के बहने को फ्लो, FLOW, और हवा के बहने को कहते हैं BLOW, ब्लो। तो जब रात्रि का समय होता है और चंद्रमा आकाश में होता है, चंद्रमा की रोशनी में ये फव्वारे के जल की गतिविधि क्या होती है, उसकी सुंदरता क्या होती है, उसका क्रियाकलाप क्या होता है, दिस थिंग हैज बीन टोल्ड बाय द पोएट इन द सेकंड स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। फ्रॉम इनटू द मूनलाइट, चंद्रमा की रोशनी में कहने का मतलब रात्र के समय में जब चंद्रमा आकाश में चमकता रहता है तो चांदनी रात में क्या होता है? इनटू द मूनलाइट व्हाइटर देन स्नो, बर्फ से ज्यादा सफेद हो जाता है। और वेविंग सो फ्लावर लाइक, और फूल के समान लहराता रहता है, फूल के समान हिलता डुलता रहता है। कब? व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवाएं चलती हैं। तो इसका जो है वो माने जो है अर्थ कैसे होगा? चंद्रमा की रोशनी में जब हवाएं चलती हैं तो फव्वारे का जल फूल के समान लहराता रहता है, हिलता डुलता रहता है, और यह बर्फ से ज्यादा सफेद हो जाता है। When it is the time of night and the moon is shining in the sky is full of the moonlight, and in the light of the moon the water of the fountain is whiter than snow. It is better than the beauty of the whiteness of snow. And in the time of moonlight, when there comes winds, or when the winds blow, in the same period, the water of the fountain waves goes from one to another place, माने हिलता डुलता है। As a flower does this process in the time of the moonlight, the beauty of the water of the fountain is like the beauty of a flower that moves slowly from its place to another place, slowly and slowly. Once again, into the time of the night, when the sky is full of the moonlight, the water of the fountain becomes more beautiful than the beauty of the snow. And when in the time of night, when many kinds of winds blow, or there comes the movement of wind, in that time the water of the fountain moves slowly
as a flower waves in its branches. This is the explanation of the beautiful poem, The Fountain. Thou I have told you only 2 stanzas today, and in the coming time I shall teach you more stanzas of this poem. Thank you. जय हिंद, जय भारत. आवाज का बंद कर दो. अरे हमारे समझ के बाहर में ये कुछ फील हो गया थोड़े. सोलह मिनट. हैं? कितने मिनट?